There is no need for going to the link directly. You can send it to me. You can send me through PDF, scanned copy, or स्कैन कॉपी है, मैं in Word डायरेक्टली format. Or तुरंत भेज दूंगा। okay, so it's fine. I mean, like since it is a first assignment and there is some technical issue, so I have received many of the assignments, but let's see if there is some issue. Okay. So good. I think we are in the sync with the course. I wanted you to get the grip of mathematical model. So when I say first order system, second order system, so it's not about the mathematically representing the system. It is also about appreciating the system in real time and also the working principle. So I saw different applications in terms of physical, I mean mechanical systems or electrical systems. So it's good. So let's start. Just I'll start with the quick revision so far. So let me share the slides with you. Entire स्लाइड दिख रहा है सबको? You are able to see the slide? Yes, sir. Okay, good. So let's move further. देखो हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअली अब एज यू नो दैट वी आर इन नाउ यूनिट 3. लेट्स सी द मैप ऑफ यूनिट 3. व्हाट आर द थिंग्स वी वर ट्राइंग टू कवर और कहाँ कहाँ हमने कवर किया है क्या क्या चीज. तो दिस इज द यूनिट फॉर टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस. फर्स्ट क्लासेस में हमने देखा स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स के बारे में एंड देन वी आल्सो सॉ टाइम रेस्पॉन्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम. We also learned about the transient response and steady state response for first order and second order system, and the time domain specifications like delay time, transient time, rise time, peak overshoot, and settling time. Steady state response we saw, steady state error and error constant we saw last in the last class. So today we will start with the PID controllers, and then we will be done with the unit 3. Okay. So it's more like a story, like how we started. First, we understood the different types of input signals, and secondly, we saw the effect of these inputs on first order and second order system. फर्स्ट ऑर्डर में अगर हमने देखा कि अगर इम्पल्स स्टेप रैम्प और पैराबोलिक इनपुट जाता है तो कैसे सिस्टम का बिहेवियर होता है. और सेकेंड ऑर्डर टर्म्स में सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में भी देखा हमने कि अगर स्टैंडर्ड सिग्नल अप्लाई करते हैं तो सिस्टम का बिहेवियर कैसा होता है. प्लीज रिमेंबर, so far we are only talking about the system which produce the response only with respect to control, sorry, with respect to input signals. There is no controller. अभी हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं सिस्टम पे, सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है, बट वी डोंट नो कि वो जो रिस्पॉन्स है वो स्टेबल रिस्पॉन्स है या अनस्टेबल रिस्पॉन्स है. तो व्हेन डू वी नीड टू डिजाइन ए कंट्रोलर, कैन समबडी टेल? तो थोड़ा सा उसका कंट्रोलर का मोटिवेशन हम देख लेते हैं कि कंट्रोलर का जरूरत कब पड़ता है. अभी तक भी आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द डिजाइन ऑफ कंट्रोल. इन दिस क्लास we will come to that, which is a major focus of this course, design of control or control system, right? तो कंट्रोल सिस्टम का जरूरत क्या है, मतलब when do we want a control system and what is the need of it? And give me a very plain answer, basic answer. I'm not looking for a standard definition or any uh, technically sound answer. So you can tell me in general. Actually तुम्हारा general जो understanding है control को लेके, I need that understanding from all of you. So please go ahead. जब हमें Yes, yes. हमें हमारे डिजायर आउटपुट
डिजायर आउटपुट के लिए हमें इनपुट वेरी करना हो तब हमें कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। जैसे वेरी गुड आंसर. इलेक्ट्रिक फैन में हम रेगुलेटर रखते हैं कुछ। Okay. So, any example can you give for that? किसी भी मशीन में जैसे कि स्पीड वेरिएशन, बेसिक में जैसे हम ओवन में टेम्परेचर वेरिएशन के करते हैं। Hmm. Very good. Very good. Hello, sir. Yes, Subham, please tell me. Sir, control system itself name indicate that the system which control our output like ammeter, voltmeter. Okay. तो क्या होता है वोल्टामीटर में? सर हम कंट्रोल कर सकते हैं ना सर कि वोल्टेज मतलब बढ़ रहा है तो Right. So we can control the voltage, right? So again, it's a good understanding. Can we say that our body, मतलब ह्यूमन जो है वो एक प्रोसेस है और सिस्टम है? कैन वी से दैट ह्यूमन बॉडी इज ए सिस्टम? यस सर। तो अगर ह्यूमन बॉडी सिस्टम है तो जैसे वी सॉ द एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स, वोल्टामीटर और other examples. So in that we have a system and we have a controller. अगर ह्यूमन बॉडी सिस्टम है तो ह्यूमन बॉडी का कंट्रोलर कहाँ पे है? व्हाट इज द कंट्रोलर ऑफ ह्यूमन बॉडी? माइंड। वेरी गुड. सो माइंड. तो एकदम से ऐसे ही होता है कंट्रोल सिस्टम डिजाइन में. जैसे हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो इफ कंप्यूटर जो सिस्टम देन प्रोसेसर, जिसका जो मदरबोर्ड होता है या प्रोसेसर यूनिट बोलते हैं उसको, दैट इज द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर. और इसी तरह से ह्यूमन का जो कंट्रोलर है वो माइंड है. तो जितना सारा कंट्रोल सिस्टम का डिजाइन होगा या जिस भी कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, द होल आइडिया इज कंट्रोलर टेक्स अ करेक्टिव एक्शन टू अचीव अ डिजायर्ड आउटपुट. डिजायर्ड आउटपुट हो सकता है टू अचीव सर्टेन टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एयर कंडीशन मशीन एसी. ये वोल्टामीटर का हो सकता है टू अचीव सर्टेन वोल्टेज. ये हो सकता है किसी भी टैंक का लेवल अचीव करने के लिए, फॉर एग्जांपल 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर. इट कैन बी useful in achieving desired speed of the aircraft, let's say 200 meter per second, 300 meter per second. It can take a decision on achieving a particular height of the aircraft, let's say 36,000 feet. It can take a decision on achieving car speed, उसका 120 मीटर पर किलोमीटर पर आवर. तो जितने सारे सिस्टम्स हमारे सराउंडिंग में होते हैं, एनी काइंड ऑफ सिस्टम, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एरोस्पेस, केमिकल सिस्टम्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स, यू नेम एनी, सभी के लिए एक सिस्टम का जरूरत पड़ता है उसके इंटरनली एम्बेडेड, जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है. So that is very good that now we are talking about the control system. तो कंट्रोल सिस्टम का जो डिज़ाइन होगा वो इस बेसिस पे होगा कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट डू वी वांट टू अचीव, और उसके हिसाब से वी विल टॉक अबाउट द कंट्रोल सिस्टम. तो कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करने का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया क्या है थियोरेटिकली? प्रैक्टिकली क्या है? अगर हम प्रैक्टिकली किसी भी कंट्रोल, मतलब प्रैक्टिकली कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया क्या है? कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? इनपुट और आउट। इनपुट और आउटपुट. ओके. एनी अदर आंसर? कौन सा सिस्टम को हम कंट्रोल करना चाहते हैं? कौन सा सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं? वेरी गुड. एनी अदर आंसर? ओके गुड. तो
ये जानना ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हम कौन से सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब इफ़ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ क्वेश्चन, राइट? तो हमारे केस में कंट्रोल सिस्टम क्या है, वो एक आंसर है। तो आंसर के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि वो क्वेश्चन क्या है, मतलब किसको सॉल्व करना है। तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आता है वो सिस्टम का आता है। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव अ सिस्टम, पहला क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया है कि व्हेन वी हैव अ सिस्टम, जैसे हमारे पास सिस्टम में एक टैब है, मैं फिर से आ जाता हूँ एकदम से बेसिक वाले एग्जांपल पे, जिसका यूज हम घर पे हर रोज करते हैं, टैब का ओपन करना और बंद करना। तो हमारे पास जो टैब है वो एक सिस्टम है, ये हो गया। सेकंड क्या होता है कि अभी टैब का ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ना, वो हमें कंट्रोल करना है या रेगुलेट करना है कि 25% ओपन करना है, 30% करना है, 40% करना है। ये हमने क्वांटिफाई किया, बट जनरली हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से इसको कंट्रोल करते हैं। पानी भर जाता है बकेट में तो उसको बंद करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगा, टू अचीव सर्टेन लेवल ऑफ द बकेट। तो बाल्टी में पानी जब भरते हैं तो एक डिजायर्ड होता है कि हमारे इसको फुल करना है। तो उसके हिसाब से हम टैप पे एक्शन लेते हैं कि उसको खोलना कब है, बंद करना कब है। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड एग्जांपल है। तो हमारा ये चूंकि मैनुअल कंट्रोल है एंड वी विल प्रोसीड टू ऑटोमेटिक कंट्रोल। ऑटोमेटिक कंट्रोल में क्या होता है कि ह्यूमन उसमें डिसीजन नहीं लेता, ये डिसीजन मशीन लेता है। तो पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या किया है कि जो डिसीजन लेगा वो ह्यूमन माइंड लेगा कि कब ओपन करना है, कब क्लोज करना है। थोड़ा सा ऑटोमेटिक सिस्टम की बात करें, जैसे एयर कंडीशन सिस्टम है, अभी हम नॉब को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते हैं एसी के इनसाइड। सारा जो मैनिपुलेशन होता है दैट इज द मैटर ऑफ जस्ट वन बटन, वी गिव अ कमांड। हम उसमें प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं एसी के लिए कि नाउ दिस एसी शुड मेंटेन 25 डिग्री सेल्सियस। ये प्रॉब्लम, एसी हमारा सिस्टम है और प्रॉब्लम को मैंने डिफाइन कर दिया है कि एसी का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। ये प्रॉब्लम मैंने डिफाइन कर दिया। अभी ये क्या करेगा, इट विल टेक ऑटोमेटिक एक्शन, controller will take automatic action to achieve that desired input, desired output or desired temperature in this case। तो हर एक के लिए ऐसा होता है, जैसे फैन का स्पीड मुझे 1400 आरपीएम चाहिए, तो मैंने जस्ट स्विच ऑन किया और सिंस इलेक्ट्रिकल फैन जो होते हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं और उसके रेगुलेटर में सारे स्पीड ऑलरेडी कैलिब्रेटेड होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट नॉब्स के लिए डिफाइंड स्पीड है। तो जैसे हमने नॉब 4 पे रखा, लेट से वी हैव नॉब का जो सेटिंग है वो 1 2 3 4 5 पे है, 4 पे रखा तो 4 के लिए एक असाइंड स्पीड है इलेक्ट्रिकल फैन के लिए। तो हमें क्या करना है, उस नॉब को कल घुमाना होता है। लेकिन जो कंट्रोलर एक्शन ले रहा होता है फैन के लिए, उसके अंदर कुछ स्पीड कंट्रोलर होगा, विच इज पॉपुलरली नोन एज ईएससी, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। तो जैसे ही हम उसको कमांड देते हैं तो इट इट टेक्स अ करेक्टिव एक्शन। तो उसका अपना एक कंट्रोलर होता है फैन का, वो डिसाइड कर लेता है या वो करेक्टिव एक्शन लेता है कितना वोल्टेज सप्लाई करना है। वी आर नॉट वरीड अबाउट, एज ए यूजर वी आर नॉट वरीड कि कितना वोल्टेज अप्लाई करना है। हमने एक बार स्विच ऑन कर दिया, उसका रेगुलेटर होता है जो कि कंट्रोलर है फैन के लिए। रेगुलेटर टेक्स द एक्शन दैट इस स्पीड पे अगर पहुंचना है तो हमें इतना वोल्टेज चाहिए। जनरली जब हम स्विच ऑन करते हैं तो एक कंटिन्यूअस वोल्टेज का सप्लाई होता है, बट वी नो दैट दिस वोल्टेज इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू स्पीड, स्पीड ऑफ फैन। तो जो डिफरेंट रेगुलेटर का सेटिंग्स होता है वहां से हम वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। और फॉर अ गिवन वोल्टेज और स्पेसिफिक वोल्टेज वी हैव स्पेसिफिक स्पीड ऑफ फैन। तो रेगुलेटर जो है वो फैन का कंट्रोलर है, मोटे मोटे तौर पे हम ये समझ सकते हैं। तो इस तरह से कंट्रोलर का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें मिल गया और रियल टाइम में कंट्रोलर कैसे काम होता है। जितने सारे इंडस्ट्री हैं, कोर हार्डकोर इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्री के लिए एक डिफाइंड जॉब होता है, डिफाइंड टास्क होता है। मे बी सीएनसी मशीन के लिए क्या होता है कि बहुत ही रिफाइंड उसका कटिंग होना चाहिए, या उसके उसके अपने एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या होता है कि उसका जो रोटेशन स्पीड होगा वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोलर का जॉब है उसके कटिंग टूल्स के स्पीड को कंट्रोल करना। तो वो हो सकता है। तो इस तरह से
प्रैक्टिकली कंट्रोल सिस्टम काम करता है। नाउ थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट हम देखेंगे। एज शुभम सेड, Shubham and Dhruvil, that we need to know the system, and Dhruvil said we need to have the understanding about the output and input. Essentially, we don't need input, we need only the information of the output कि system का output ऐसे होना चाहिए, that is known as desired output or set point. तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है सिस्टम का, सेकंड रिक्वायरमेंट है सेट पॉइंट का या डिजायर्ड आउटपुट का। उसके बाद हम कंट्रोलर की बात करना शुरू करते हैं। तो अभी तक मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था वो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट के लिए एक्सप्लेन कर रहा था। इसको थियोरेटिकली कैसे डिजाइन करेंगे, बिकॉज एज ए स्टूडेंट और एज ए कंट्रोल इंजीनियर हम वी कैन नॉट डिजाइन एवरीथिंग इन अ रियल टाइम इनिशियली। हमें क्या करना पड़ता है, उसका सिमुलेशन स्टडी करना पड़ता है। तो उसके बाद जब सिमुलेटर पे या सिमुलेशन स्टडी पे वो क्वालिफाई होता है, कंट्रोलर काम करने लगता है, आई मीन व्हेन इट वर्क्स इन द कंप्यूटर उसके सिमुलेशन वर्जन पे, देन वी प्रपोज फॉर रियल टाइम सिस्टम। उसके बाद रियल टाइम सिस्टम का डिजाइन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक एयरक्राफ्ट डिजाइन करना है, राइट, तो एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने के लिए हम वी विल नॉट स्टार्ट बिल्डिंग द एयरक्राफ्ट एंड देन वी विल डिजाइन अ रियल टाइम कंट्रोलर। इसको करने से क्या होगा कि कंट्रोलर में प्रॉब्लम आएगा या डिजाइन एयरक्राफ्ट के डिजाइन में प्रॉब्लम आएगा, देन अगेन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड वी हैव टू बिल्ड अ न्यू एयरक्राफ्ट और न्यू व्हीकल, एरियल व्हीकल। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि उसका हम थियोरेटिकल स्टडी करते हैं। थियोरेटिकली पहले हम ये इंश्योर करते हैं कि इसका कंट्रोलर जो है वो ऑपरेशनल है और फंक्शनल है, ये काम कर रहा है। तो जब हम थियोरेटिकली सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वी स्टार्ट बिल्डिंग अ रियल टाइम सिस्टम। सो दिस इज द आइडिया ऑफ डिजाइनिंग एनी सिस्टम। सिंस यू ऑल वांट टू वर्क ऑन डिजाइन, तो डिजाइन का पहला जो क्राइटेरिया है कि वी डोंट स्टार्ट इनिशियली डिजाइनिंग अ रियल टाइम सिस्टम। पहले उसका सिमुलेशन स्टडी होगा, कंप्यूटर पे डिजाइन करेंगे। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कैड कैम डिजाइन, काटिया है। तो इसका आइडिया यही है कि हम एयरक्राफ्ट को भी काटिया में डिजाइन कर सकते हैं, कैड में डिजाइन कर सकते हैं, कार को डिजाइन कर सकते हैं। देन वी डू ऑल द एनालिसिस। एडवांस सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो हम सारा एनालिसिस कर सकते हैं कि कंट्रोलर कैसे काम करता है इन सारे सिस्टम्स के ऊपर। तो कमिंग टू थियोरेटिकल डिजाइन ऑफ द कंट्रोल, तो अभी तक जो हम लोगों ने असाइनमेंट 1 सॉल्व किया है ये उसका बैकग्राउंड है कि किसी भी सिस्टम का अगर हमें मैथमेटिकल मॉडल मिल जाता है तो थियोरेटिकली वी से दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू अ रियल टाइम मॉडल। जैसे स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम है, सम ऑफ यू हैव सॉल्व फॉर आरएलसी सर्किट, सम ऑफ यू हैव सॉल्व फॉर टेम्परेचर प्रोसेस, जहाँ पे हम टेम्परेचर को वेरिएबल मानते हैं। तो अभी बैकग्राउंड क्या हुआ कि सिस्टम का हमने मैथमेटिकल मॉडल ऑब्टेन कर लिया और उसको हमने दो सेटिंग्स में किया था, दो अप्रोचेस से, डिफरेंशियल इक्वेशन और लैपलेस से। तो एज शुभम सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिजाइन अ कंट्रोल सिस्टम वी नीड टू हैव अ सिस्टम, ये हो गया, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकंड ऑब्जेक्टिव, Dhruv said that we need to have output also. Since input is about designing the control, so only output is required. कि फर्नेस का टेम्परेचर मुझे 800 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है, फैन का स्पीड 1400 आरपीएम मेंटेन करना है, टैप का जो फ्लो है वो 25% के ओपनिंग पे रखना है। इस तरह के एसी का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। तो ये सेकंड हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। तो ये हम कर सकते हैं थियोरेटिकली भी। तो हमें जब दो चीज मिल जाता है, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द रियल सिस्टम एंड वी ऑल्सो नो द ऑब्जेक्टिव, देन कंट्रोलर विल कम इनटू पिक्चर। तो ये सारा जो चीज है ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करने का। अभी बिफोर वी स्टार्ट कंट्रोल सिस्टम डिजाइनिंग फॉर होल प्रोसेस, थोड़ा सा हम ग्लिम्स देखेंगे कि कंट्रोल सिस्टम होता क्या है और कंट्रोल सिस्टम का फिलॉसफी क्या है, ये कैसे काम करता है। तो विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशंस, दे आर प्रोपोर्शनल, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल कंट्रोलर। तो अभी हम आज पढ़ेंगे पीआईडी कंट्रोल के बारे में। Coming to PID control, proportional control. Okay. So can anybody comment on proportional control, derivative control और integral control? किसी ने
इससे पहले कोई काम किया है या पढ़ा है इसके बारे में, सुना है कभी कुछ, क्या हो सकता है ये? तो वी assume that we are starting from the basics, तो हम आज assuming that we will learn for the first time, तो इसीलिए मैंने इसका स्टैंडर्ड बहुत ही बेसिक रखा है, और it is also related to our previous understandings or previous lectures. Okay? So let's start with proportional controller. प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में क्या होता है कि this is a very familiar block diagram representation. So I'll start this slide so that we can use page. So I wanted to use this digital pen so that I'm restarting the slide so that option should appear here. Okay, great. So this is what actually I wanted. So coming to proportional controller, a very basic controller. ये वाला, ठीक है? So yes, I was talking about this block diagram actually. This one, ये वाली, तो इसी के बारे में बात करते हैं. So most of the time our block diagram used to be like this. GS, GS, ऐसा होता था हमारा ब्लॉक डायग्राम प्रीवियस केस में, और यहाँ पे हम रखते थे ये इट्स आवर विश, वी कैन कीप गेन एज वन और सम एच एस सम ब्लॉक हियर, बट जनरली हमारा ऐसा होता था. तो ये क्या होता था, दैट इज नॉन स्टिल इज नॉन एज प्रोसेस हियर, और ये फीडबैक एलिमेंट है. फीडबैक एलिमेंट का गेन कुछ भी हो सकता है. इट मेनी टाइम्स वी कीप इट एज वन to ensure it is negative feedback or unity unity feedback or unity positive feedback or unity negative feedback. So when gain is one, then it is becoming unity. तो ये feedback element है. तो इस वाले ब्लॉक डायग्राम में एक नया ब्लॉक इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज दिस ब्लॉक केपी. तो सबसे पहले ये जो केपी है, ये जो ब्लॉक है एक्चुअली, ये रिप्रेजेंट करता है कंट्रोलर ब्लॉक को. मतलब हमने अब प्रोसेस में कंट्रोलर ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, राइट? अब देखो कि ये इसका मोटिवेशन कैसे आएगा यहाँ पे. 1/s टाइम्स s प्लस एट, लेट्स से दिस इज अ स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. ये जीएस ये है मेरा, ये है जीएस. अभी मान लो कि ये ऐसा ब्लॉक डायग्राम है, जीएस ऐसा है, तो ये हो गया. तो जीएस को अगर हम ब्रेक करेंगे ऐसे, तो इट विल बिकम, सॉरी, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा सॉल्व करने के बाद, ये हो जाता है 1. सबसे पहले इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो निकाल लो. तो ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो ये वाला टर्म ऊपर रह जाएगा, एस टाइम्स एस प्लस एट डिवाइडेड बाय 1/1 जीएस बाय 1 प्लस जीएस. अगर इसका गेन मैंने 1 ले लिया इनिशियली अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो 1/s प्लस एट एट ऐसे होगा. तो ये नीचे जो टर्म आएगा, ये ट्रांसफर फंक्शन है टी एफ, ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 8, राइट? एस स्क्वायर प्लस एट एट, हाँ प्लस 1 आ गया. एस स्क्वायर प्लस 8s यहाँ आएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस टाइम्स एस स्क्वायर टाइम्स, सॉरी एस स्क्वायर प्लस 8s ऐसे होगा.
तो ये जो नीचे का टर्म होता है ना, ये सेकंड ऑर्डर का जो टर्म आएगा, इसको मैं इक्वेट करूंगा जीरो से, जीरो से। बाकी ये वाला टर्म कट जाएगा। तो वी आर वरीड अबाउट नाउ ओनली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टर्म, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का एक और चीज है जो होता है 1 प्लस जी एस एच एस किसी भी सिस्टम का इक्वल्स टू जीरो से होता है। तो इसको, ये तो मैंने ऐसे करके दिखाया, इसका डिनोमिनेटर में ये टर्म अपीयर होगा, डिनोमिनेटर के टर्म को इक्वेट करेंगे जीरो से, तो गिव्स यू द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और if you don't want to solve all these, then directly you can write 1 plus 1 by s times s plus 8, hs 1 है equals to 0। तो इसका भी इक्वेशन वही बन के आएगा, एट s plus 1 equals to 0। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये। So now from here we have to find two parameters, important parameters in time domain are omega n and delta। ओमेगा n तो ये होगा, ओमेगा n कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो होता है 2s² प्लस 2 डेल्टा ओमेगा n प्लस ओमेगा n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये होता है स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये ओमेगा n स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे 1 स्क्वायर है, तो ओमेगा n इज ऑब्वियसली 1 and your delta will become 4। 2 times 1 into delta equals to 8, so delta will become 4, right? So can somebody tell me now, is this a option you have overdamped system, underdamped system, un undamped या critically damped? Critically damped, ये क्या है ये सिस्टम? Sorry? Critically damped. Okay, so one answer I got, critically damped. Any other answer? Yeah, please respond to that actually, so that we can मूव फर्दर। तो ये जो सिस्टम है ये किस टाइप का सिस्टम? व्हेन यू हैव डेल्टा इक्वल्स टू 4, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज दिस? वन आंसर आई गॉट Over damp. एज क्रिटिकली डैम्प्ड। Over damp. एनी अदर आंसर? यस ध्रुव? Over damp. ओवर डैम्प्ड, ओके। so the right answer will be over damped system। क्यों? क्योंकि देखो इसको फिर से रिवाइज करते हैं। दैट्स व्हाई एवरी टाइम व्हेन आई स्टार्ट द क्लास आई ट्राई टू रिवाइज फ्यू कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लास और फ्रॉम द प्रीवियस कॉन्सेप्ट। देखो फिर से करेंगे, डोंट वरी, सिंस इट इज ए न्यू फॉर अस। तो अगर ये डेल्टा जीरो होगा तो दैट इज नॉन एज अनडैम्प्ड सिस्टम। ये हम हमेशा याद रखेंगे, सेकेंड ऑर्डर के केस में कोई भी कंट्रोलर डिजाइन करेंगे तो वी शुड नो अनडैम्प्ड सिस्टम होता है ये। अगर ये 1 होगा तो ये क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। ये डेल्टा इक्वल्स टू लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये होता है अंडर डैम्प्ड। डेल्टा ग्रेटर देन 1 होगा तो ये हो जाएगा ओवर डैम्प्ड। और अनडैम्प्ड का मतलब क्या हुआ कि ये फ्लक्चुएट करता रहेगा ऐसा करके। क्रिटिकली डैम्प्ड का मतलब क्या हुआ कि ये सेट 1 तक पहुंचेगा ही नहीं, कुछ ऐसा करके कुछ इसका रिस्पॉन्स आएगा। और इसमें क्या होता है कि ये आफ्टर सम टाइम इट विल ट्राई टू गेट सेटल ऐसे करके। और जब ये ओवर डैम्प्ड हो जाता है ना, सॉरी, ये सेटल होगा, मतलब डैम्प कहीं ना कहीं ये अंडर डैम्प बोलते हैं इसको। इसका जो ट्रेसेस है या ये जो डैम्पिंग इन्वेलप है वो डाई डाउन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये क्या है कि इसका एनवेलप बढ़ता रहेगा, मतलब ऑसिलेशन जो ये अनस्टेबल होता रहेगा। तो व्हेन आई से डेल्टा ग्रेटर देन 1 देन इट इज ओवर डैम्प सिस्टम, राइट। तो इस वाले एग्जांपल में जो मैंने लिया है एक सेकेंड ऑर्डर का एग्जांपल, इट कैन बी एनीथिंग। अभी तो तुमने ऑलरेडी सॉल्व किया है ये सिस्टम। तो जो सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम है ना, सभी के केस में वो ऐसा ही आएगा, ये वाला। तो तुम्हारा जितना भी तुम लोगों ने असाइनमेंट सॉल्व किया है, सभी का जो सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, वो इसी फॉर्म में आना ही आना है, ये ऐसा ही आएगा। मे बी यहाँ पर कुछ कांस्टेंट होगा। तो जैसे स्प्रिंग मास डैम्पर के केस में एम एस स्क्वायर प्लस बी
एफ प्लस के इक्वल्स टू 0 ऐसे कुछ करके आएगा। तो मास, डैम्पिंग कोफिशिएंट और ये के जो है ये सारे कांस्टेंट हैं। अदरवाइज अब इसको मास m से डिवाइड कर दो सब पे, तो ये एस स्क्वायर प्लस बी बाई एम हो जाएगा प्लस के बाई एम हो जाएगा, यहाँ से इसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम है। इसके लिए ओमेगा एन जो है वो हो जाएगा के बाई एम। इसके लिए जो डेल्टा है वो हो जाएगा, इसको रिलेट कर दो ट्वाइस ऑफ ओमेगा एन टाइम्स डेल्टा एम, तो ये हो जाएगा, इसको निकाल दो ऐसे करके सीधा, बी बाई एम इक्वल्स टू 2 डेल्टा ओमेगा एन। ओमेगा इधर आ जाएगा, बी बाई एम ओमेगा एन 1/2, ये हो जाएगा डेल्टा। तो बी बाई 2 m ओमेगा एन हो जाएगा तुम्हारा फिर से के बाई एम। तो ये है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट, मास और डैम्पिंग कोफिशिएंट के टर्म में हमारा ओमेगा एन आएगा और डेल्टा आएगा। तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड मास। उसके हिसाब से यू कैन कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी और टाइम स्पेसिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम की। ये स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम जो है वो ओवर डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, अनडैम्प्ड है या अंडर डैम्प्ड है। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, इट कैन बी एनीथिंग एक्चुअली। सो इट कैन बी योर स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम डिजाइन, इट कैन बी आरएलसी सर्किट और इट कैन बी एनी टेम्परेचर थर्मल सिस्टम। तो ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम अभी इसीलिए मैं जेनेरिक ट्रांसफर फंक्शन में लेके बता रहा हूँ। एंड ऑल ऑफ यू नाउ विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि ये जो सेकेंड ऑर्डर टर्म आता है, ये सारे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स के लिए जो भी टाइप का सिस्टम हो उसका रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से ही होता है। तो जितने सारे सेकेंड ऑर्डर टर्म्स होंगे, सिस्टम होंगे, सबका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसी टाइप से आएगा। ओमेगा एन और जी और डेल्टा सबका निकाल लेना है हमें। ओमेगा एन 1 है, डेल्टा 4 है। तो यहाँ से जो डेल्टा 4 आया, इससे तो पता चल रहा है कि ये जो सिस्टम है ये ओवर डैम्प सिस्टम है। तो नेचुरली कंट्रोल सिस्टम का जॉब हो जाएगा अभी कि इस सिस्टम को अंडर डैम्प करना है, क्योंकि अगर ये ओवर डैम्प इट इज अनस्टेबल। यू डोंट वांट टू फ्लाई एयरक्राफ्ट इन अनस्टेबल मोड। तो इसको क्या करना है, स्टेबल करना है। आई मीन अनस्टेबल मोड तुम्हारा ऐसे हो सकता है जब एयरक्राफ्ट बहुत ही हाई एंगल पर अटैक कर फ्लाई करेगा इस तरह। सपोज ये जो एयरक्राफ्ट का फ्लाइंग है ये अनस्टेबल है, इसको स्टेबल कर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा वो हम देखेंगे। तो कंट्रोल सिस्टम डिजाइन का मोटिवेशन यहाँ से आने लगा थियोरेटिकली कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक दिस टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस और उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसा है और डैम्पिंग फैक्टर कैसा है। तो ये हो गया 4। ठीक है, तो देखो कि अगर ऐसा प्रोसेस रहेगा तो यहाँ पे हम कोई भी इनपुट अप्लाई करेंगे तो ये प्रोसेस क्या करेगा कि अगर हम स्टेप अप्लाई करेंगे तो वी ऑलरेडी हैव सीन द रिस्पांस कि ऐसे इसका ग्रो होगा इस तरह से। वी नो द सिस्टम रिस्पांस फॉर डिफरेंट इनपुट्स। तो ये सिस्टम क्या है, जो गिवन सिस्टम है वो अनस्टेबल सिस्टम है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए यू नीड टू हैव अ कंट्रोलर। तो ये स्टोरी में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा। पहले हमारे पास GS था, RS था, CS था और HS था। HS कैन बी 1 और इट कैन टेक एनी फीडबैक वैल्यू, फीडबैक गेन। तो इस स्टोरी में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है KP और कंट्रोलर। ठीक है, KP क्यों बोला मैंने वो मैं बताऊंगा अभी। तो ये कंट्रोलर है। अभी जो करंट हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी जो हम पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसमें ये कंट्रोलर बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सकते हैं। प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, डेरिवेटिव हो सकते हैं। तो वो हम एक एक करके देखेंगे। तो दिस इज पॉपुलरली नॉन एज PID कॉन्सेप्ट। तो PID में P जो है वो प्रोपोर्शनल है, I जो है वो इंटीग्रल है, इंटीग्रल, और D जो है वो डेरिवेटिव है। ठीक है, डेरिवेटिव। तो आज के क्लास में हम इसी पे फोकस करेंगे, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर पे, इंटीग्रल कंट्रोलर पे और डेरिवेटिव कंट्रोलर पे, ये करेंगे। फिर बाद में हम देखेंगे कि कैन वी कंबाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ these two control techniques
तो उसके कॉन्सेप्ट को अगर हम कंबाइन करेंगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो पी आई आएगा, पी डी आएगा। और कैन बी कंबाइन ऑल थ्री, यस पी आई डी। तो हम आज 6 चीज़ सीखने वाले हैं। इंडिविजुअली प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, इंडिविजुअली इंटीग्रल कंट्रोलर, इंडिविजुअली डेरिवेटिव कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर, पीडी कंट्रोलर और पीआईडी कंट्रोलर। तो ये सारा कंट्रोलर सीखेंगे, सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ एप्लीकेशन वी हैव, उसके हिसाब से हम ये कंट्रोलर डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ये अभी हमें पता चल गया कि कंट्रोलर का रिक्वायरमेंट क्यों आ गया है, मतलब इस कहानी में इस कैरेक्टर का जरूरत क्यों पड़ा, ये हमें पता चल गया, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस कैरेक्टर और दिस कंट्रोल ब्लॉक। तो देखो कि ये जो इसके इसका ये कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर का इनपुट जो है वो यू एस, सॉरी कंट्रोलर का जो आउटपुट है यू एस है, और कंट्रोलर का जो इनपुट है वो ई एस है। कंट्रोलर का जो आउटपुट होगा दैट विल बिकम अ न्यू इनपुट फॉर द प्रोसेस और फॉर द इनपुट, ये इसके लिए। तो अभी का जो फोकस है वो इस पे है, ठीक है। तो देखो कि यूटी जो है, यूटी ये है टाइम डोमेन में और यूएस है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, अगर यहाँ पे सिर्फ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की हम बात करें तो आई थिंक आई जस्ट मेक अ स्पेस। और समझ में नहीं आया तो प्लीज रिस्पॉन्ड क्विकली सो दैट आई एक्सप्लेन एंड ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। तो ये देखो ये कंट्रोलर है, ठीक है, ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर का जो नया आउटपुट है वो यूएस है, कंट्रोलर का जो इनपुट है वो ईएस है। तो प्रोपोर्शनल में क्या होता है ना कि ये जो यू है, टाइम डोमेन में इसको यूटी लिख दो और टाइम डोमेन में इसको हम ईटी लिख सकते हैं। लाप्लास डोमेन में ईटी बिकम्स ईएस, लाप्लास डोमेन में यूटी बिकम्स यूएस। तो क्या होता है कि ये जो कंट्रोल का आउटपुट है यूटी, इफ यूटी इज प्रोपोर्शनल टू ईटी, मतलब ये जो आउटपुट है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरर के, तो इस तरह का जो कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको हम प्रोपोर्शनल कंट्रोल बोलते हैं। जिस कंट्रोल का आउटपुट एरर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंट्रोल टेक्निक को हम पी कंट्रोलर बोलते हैं या प्रोपोर्शनल कंट्रोलर बोलते हैं। तो इसको यूटी बराबर ये ईटी इक्वल्स टू हो जाएगा केपी टाइम्स ईटी, ये यहाँ से जो मैंने लिखा है। तो अब देखो कि ये जो केपी है ना दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल कंट्रोलर कांस्टेंट, इसी पे सारा कंट्रोल का डिजाइन डिपेंड करेगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पे लाप्लास डोमेन में यू एस विल बिकम के पी टाइम्स ई एस और यू एस बाई ई एस इक्वल्स टू के पी। इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा इस ब्लॉक का के पी होगा। के पी क्यों आया, क्योंकि आउटपुट बाय इनपुट जो है वो ट्रांसफर फंक्शन या गेन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो वैल्यू है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के केस में वो के पी है, दैट्स वाई इट इज नाउ के पी। अब देखो कि वो इसको लगाने से क्या एडवांटेज मिलता है हमें, इसका एडवांटेज क्या है। ये मैं फिर से रब कर रहा हूँ, आई विल शेयर दिस स्लाइड सो दैट यू विल गेट ऑल अंडरस्टैंडिंग। तो अभी एक चीज मुझे बताओ कि इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन चेंज होगा या नहीं। तो क्योंकि अभी जो ट्रांसफर फंक्शन ओवरऑल है ना इस केस के लिए ये मेरा ये हो जाएगा इंक्लूडिंग कंट्रोलर। तो हमें पता है कि ये सीरीज में है, तो ये जो जी एस का ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास था 1/s टाइम्स s प्लस 8। तो अब इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो के पी बाय एस टाइम्स s प्लस 8 हो जाएगा। ये इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हो गया इस सिस्टम का। तो ये सिस्टम फिर से वैसा ही दिखेगा जैसा हम पहले बना रहे थे। तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक, ये हो जाएगा इसका सी एस एस। थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, इसको कर देते हैं। तो नाउ सेम थिंग हैज रिड्यूस टू दिस वन। तो अभी जो नया ट्रांसफर फंक्शन है वो ऐसा बन गया के पी बाई एस प्लस एस टाइम्स एस प्लस 8। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा 1 + जी एस इक्वल्स टू 0, यहाँ से हम निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फिर से। तो 1 + के पी
बाय एस टाइम्स एस प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसका हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 8 एस प्लस के पी बराबर 0। ठीक है, तो इसके केस में फिर से हम निकालेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ये तो यहाँ पे 8 एस स्क्वायर प्लस 8 एस प्लस के पी इक्वल्स टू 0 है। इसको यहाँ से कंपेयर कर दो, तो सबसे पहले नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के पी ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा एन, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा एन है ना, ये एस होगा यहाँ पे, इक्वल्स टू हो जाएगा 8। तो डेल्टा हो जाएगा 8 बाय ट्वाइस ऑफ ओमेगा एन। ठीक है, इट मीन्स 4 by square root of Kp. Now you see that how Kp is playing a role in modifying overall system or overall transfer function of the system. Now you can you appreciate now? अभी ये जो सिस्टम ओवर डैम्प हो रहा था उसको हम अंडर डैम्प करेंगे, तो इसका मतलब होगा कि इसका जो वैल्यू होगा वो 16 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर Kp is greater than 16, then this will become less than 1, right? So now you see, just putting a simple block which I claim as controller block, और इस केस में ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का ब्लॉक है। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के ब्लॉक के आते ही क्या हुआ कि इसका जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है वो मॉडिफाई हो गया, और सिस्टम ओवरऑल सिस्टम का जो डैम्पिंग फैक्टर है वो जिसके वजह से ओवर डैम्प हो रहा था वो हम चेंज कर सकते हैं। इफ आई पुट Kp इक्वल्स टू 16 डायरेक्टली, then it is becoming, or greater than 16 means we can put 17, then your delta will become less than 1. So once we have less than delta less than 1, same system has become now under damped, over damped से ये under damped बन गया। तो सबसे पहले ये स्टेबिलिटी अचीव कर लिया। नाउ इफ वी आर वेरी मच प्रिसाइज दैट इसका जो डैम्पिंग फैक्टर है वो होना चाहिए 0.8, देन अकॉर्डिंगली यू कैन चूज द वैल्यू ऑफ Kp। तो Kp का वैल्यू हमें स्पेसिफिक वैल्यू पता चल जाएगा जिसकी वजह से इसका वैल्यू है 0.8। तो नाउ यू सी हाउ योर कंट्रोलर इज हेल्पिंग यू टू अचीव अ रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, द डिजायर्ड आउटपुट। तो इस केस में अगर हमें डिजायर्ड आउटपुट कुछ इसका होगा, लेट्स से डिजायर्ड आउटपुट इज यहाँ पे ही कर लो 0.8 है, तो हमें पता चल जाएगा 0.8 आने के लिए इसका सिग्मा का वैल्यू कितना होना चाहिए। वंस वी नो द सिग्मा वी कैन मॉडिफाई Kp, राइट। तो ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का फिलॉसफी है। अभी प्रॉब्लम एक और अराइज होगा कि एज वी नो दैट व्हेन इफ डेल्टा का वैल्यू बहुत ही कम हो रहा है, एज इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द जीरो, देन क्या होगा कि इसमें ऑसिलेशन आने लगेगा फिर से बहुत सारा। डिजायर्ड इज दिस वन, बट व्हेन इट डिक्रीजेस फर्दर डिग्री होते होते अगर ये जीरो के करीब पहुंचता है, इट मीन दैट वेरी फॉर वेरी हाई वैल्यू ऑफ गेन इट विल स्टार्ट डैम्पिंग, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग लाइक दिस। और हमें एरर के बारे में भी पता है, तो यू नो दिस स्टेडी स्टेट एरर, वहां से क्या होता है, ये होता है 1/1 प्लस Kp स्टेडी स्टेट एरर स्टेप के लिए। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम, और Kp होता था हमारा 1/1 प्लस GS ऐसे करके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है वो फॉर हायर गेन इट विल ट्राई टू, इफ वी वांट टू अचीव अ स्टेडी स्टेट एरर जीरो। अभी देखो केस क्या बनता है कि वी वांट टू अचीव दिस वन, ये ऑफसेट हमें जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए क्या होगा कि हमें Kp का वैल्यू बहुत हाई चूज करना पड़ेगा, मतलब जो प्रोपोर्शनल गेन आएगा वो बहुत हाई हो जाएगा। और बट प्लीज रिमेंबर दिस Kp इज नॉट दिस Kp, so you can make it Kp बार, राइट। तो Kp कैसे रिलेटेड है वो भी देख लो। 1/1 प्लस ये हो गया Kp बाय S टाइम्स S प्लस 8, ये Kp है और ये Kp बार है। तो ये इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगा, तभी ये इन सॉरी इफ यू सी द रैम्प केस देन इट विल बिकम जीरो।
तो एसेंशियली क्या होता है कि स्टेडी मतलब जो इसका जिस्ट है वो ऐसा है इन अ नटशेल, इफ यू वांट टू अचीव स्टेडी स्टेट एरर जीरो देन योर गेन शुड बी वेरी हाई। और यहाँ पे देखो कि गेन अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, इफ दिस गेन इज वेरी हाई देन दिस नंबर विल बी वेरी लो विच विल गो क्लोज टू जीरो। तो इस पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के साथ, इफ यू आर ट्राइंग टू मिनिमाइज दिस एरर देन ऑसिलेशन विल इंक्रीज सो मच। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोपोर्शनल गेन क्या कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू मेक योर सिस्टम अंडर डैम्प, फ्रॉम ओवर डैम्प टू अंडर डैम्प ये आ गया। बट एट द सेम टाइम अभी हमें क्या करना है कि वी हैव टू वाइडली चूज केपी, क्योंकि अभी जो क्राइटेरिया है वो केपी का है, ग्रेटर देन 16 होना चाहिए, 16 से बड़ा कोई भी नंबर हम चूज कर सकते हैं। इसका जो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो ये बोल रहा है कि केपी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा तो स्टेडी स्टेट एरर जो होगा वो बहुत कम होगा। बट एट द सेम टाइम केपी का वैल्यू बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा तो ये डेल्टा जो है वो बहुत कम हो जाएगा, इट विल गो टुवर्ड्स जीरो। तो इधर से जैसे हम इधर बढ़ते जाते हैं ना इधर, तो ये सिस्टम में अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। तो इसको ऐसे समझेंगे हम, जीरो की तरफ जाएगा अनडैम्प्ड हो जाएगा, तो जैसे जैसे ये अनडैम्प्ड की तरफ बढ़ेगा इस सिस्टम में ऑसिलेशन बढ़ेगा। तो इसका भी ट्रेड ऑफ क्या है, इफ यू वांट टू अचीव जीरो स्टेडी स्टेट एरर यू विल हैव वेरी हाई ट्रांजिएंट्स जो कि अनडिजायरेबल है, और ट्रांजिएंट्स अगर हमें प्रॉपर रखना है तो स्टेडी स्टेट एरर जीरो नहीं होगा। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि स्टेडी स्टेट एरर कैन नॉट बी जीरो, ESS will not be zero in case of proportional controller। बाकी क्राइटेरिया अचीव हो रहा है बट will not be able to achieve error। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या करना है, डेरिवेटिव कंट्रोलर कॉन्सेप्ट आता है, तो अभी हम इंडिविजुअली देखेंगे। तो डेरिवेटिव कंट्रोलर क्या होता है कि ये जो आउटपुट अभी है यूटी टाइम डोमेन में, दिस इज प्रोपोर्शनल टू योर डेरिवेटिव ऑफ द एरर, मतलब एरर सिग्नल का डिफरेंशियल होगा। तो ये ईटी है, एरर का डेरिवेटिव डी होगा यहाँ से, तो ये तुम्हारा हो जाएगा यू टी इक्वल्स टू के डी टाइम ई टी। ये नया डेरिवेटिव कांस्टेंट आ गया, तो देखो इसका टाइम डोमेन में के डी ई टी हो गया, के डी डी ई टी बाई डी टी ऐसा ही रहेगा, और लाप्लास डोमेन में ये हो जाएगा के डी एस। तो यू एस विल बिकम योर के डी एस टाइम्स ई एस, यू एस, और ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा यू एस बाई ई एस इक्वल्स टू के डी एस। तो इन प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में सिर्फ केपी था, सिर्फ गेन था, अभी ये के डी एस हो जाएगा। तो ये देखो कि जो ट्रांसफर फंक्शन मैंने चूज किया था 1/s टाइम्स s प्लस 8, इसका जो इसके साथ जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन बनेगा वो हो जाएगा के डी एस बाई इतना। तो 1 प्लस के डी एस बाई एस स्क्वायर प्लस 8s इक्वल्स टू जीरो, एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस के डी एस इक्वल्स टू जीरो, सॉरी एस स्क्वायर प्लस 8s। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एस तो यहाँ पे मिल गया लेकिन इसका जो ओमेगा एन है वो जीरो आ रहा है। तो आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट यू हैव टू चूज दिस एज समथिंग दैट यू कैन अचीव प्रॉपर ओमेगा एन एंड डेल्टा। इस केस में क्या हो रहा है कि ओमेगा एन मेरा जीरो आ रहा है, डेल्टा जो होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, इट विल ऑल्सो बी अ फंक्शन ऑफ के पी के डी, सॉरी इस केस में के डी है तो के डी का फंक्शन होगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि only d derivative controller we generally avoid, we cannot use only derivative controller because omega n is becoming zero। but again if we have some transfer function uh, in which this s will get cancelled, तो ये s cancel हो जाएगा, उसको जीरो पोल कैंसिलेशन भी बोलते हैं। तब
essentially your second order is reducing to a first order. तो ये उसके ऑर्डर को भी चेंज कर रहा है, बट इट्स क्वाइट अनडिजायरेबल, राइट. So derivative controller alone is not generally designed, but to understand as a philosophy of derivative controller, मतलब अगर सिर्फ derivative controller होगा कंट्रोल सेटिंग में, तो उसका इफेक्ट कंट्रोलर पे इस तरह से आता है. Similarly for I controller, this skd will become now ki by s, because your ut is now proportional to integral of error, और इसका लाप्लास में ऐसा होगा, ये होगा. So now your new function, let's say 1 by s times s plus, sorry, s plus 8, इसका न्यू ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 अगेन टाइम्स 1 by s, तो 1 by s स्क्वायर s plus 8. ये सिस्टम का ऑर्डर एक ऑर्डर से इंक्रीज करता है, ये सेकंड ऑर्डर बिकमिंग नाउ थर्ड ऑर्डर, इट चेंजिंग द ऑर्डर. सो I controller alone is not desirable, so you have to mix it with something else. तो यहाँ पे क्या है कि individually if you have applied integral controller, then that is how it is changing. So my point is now that I was trying to tell you each controller P, I and D individually, they affect overall transfer function, और जब overall transfer function change हो जाता है, तो इसका जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है वो that will change and it affects the stability. So in the coming lectures we are also studying about stability of the system. So stability analysis can be done for nth order system, so s to the power n. तब हम देखेंगे कि ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम बन जाता है, तो उसका स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है, इज इट मेकिंग मोर स्टेबल, लेस स्टेबल और अनस्टेबल. So that will be studied in stability part. But our whole idea is now when you add controller to a process or system, then system behavior is changing. Now you have to see that which kind of setting is useful for your system to achieve the achieve particular objective. तो देखो ये हो गया पीडी कंट्रोलर. तो पीडी में क्या किया मैंने, प्रोपोर्शनल का सेटिंग ऐड किया और डेरिवेटिव का सेटिंग ऐड किया, डेरिवेटिव. तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इज नाउ केपी प्लस केडी टाइम्स एस. तो ये जो एस 1 बाय एस इंटू एस प्लस 1 है, 8 है, ये हो जाएगा केपी प्लस के डी एस टाइम्स एस इंटू एस प्लस 8. इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा ये इक्वल टू 0 होगा. तो इट लुक्स मोर व्हाट टू से, इट लुक्स मोर स्टेबल सेटिंग, क्योंकि यहाँ पे नाउ वी हैव टू पैरामीटर्स केपी एंड केडी टू चूज एंड चेंज द सेटिंग. तो ये बहुत ही फाइन ट्यूनिंग करके हम इसके परफॉर्मेंस को चेंज कर सकते हैं. वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग केपी एंड ऑल्सो चेंजिंग केडी. तो प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव जो है एक अच्छा कंट्रोलर का सेटिंग है, पीडी कंट्रोलर, दैट इज नोन एज पीडी कंट्रोलर. Similarly, you have I controller where you have taken the element of proportional and integral. So with that, your equation will again modify. So let me write like this: so Kp plus Ki by s, s times s plus 8, 1 plus this equals to 0. ये हो जाएगा न्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिकॉज ऑफ पी कंट्रोलर. अभी सबसे जो बेस्ट कंट्रोलर है वो PID, मतलब आई मीन वट एवर यू वांट टू अचीव यू कैन अचीव विद दिस इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल रिस्पॉन्स. तो Kp plus Ki by s plus Kd times s divided by s times s plus 8. If you want to find a characteristic equation, you can equate with 0. तो ये आएगा. अभी इसको जनरली इसका जरूरत कैसे पड़ता है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो होता है वो ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी इसको इम्प्रूव करता है. पीआई में क्या करेगा, बट ये स्टेडी को जीरो नहीं करता, कभी इम्प्रूव करता है बट इट विल नॉट मेक जीरो. पीआई की सेटिंग में क्या होगा कि ट्रांजिएंट और स्टेडी को इम्प्रूव करेगा. पीडी में भी ट्रांजिएंट और स्टेडी को करेगा, ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी पीडी के केस में. बट पीडी के केस में मोर फोकस विल बी गिवन टू ट्रांजिएंट so that it should not have very oscillatory response. और पीआई के केस में जो फोकस होता है वो स्टेडी पे होता है. आई मीन
ऐसे अगर हमारा रिस्पॉन्स है, इट विल हैव सम एरर। तो ये वाला पार्ट है ट्रांजिएंट और ये पार्ट है स्टेडी। तो पीआई जो होता है उसका फोकस ये वाले पोर्शन पे ज़्यादा रहता है, पीडी का फोकस ये वाले पोर्शन पे ज़्यादा रहता है। ऑफ कोर्स इट विल इफेक्ट स्टेडी आल्सो बट नॉट सो मच। तो अभी हमें हमारा जो फोकस रहेगा वो ये ऐसा रहेगा कि हमें ये वाला रिस्पॉन्स मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है या ये वाला करता है। जो स्मार्ट ऑपरेटर्स आ रहे हैं या स्मार्ट अप्लायंसेस आ रहे हैं उसमें देखोगे कि ये वाला बहुत वाइटल है। पहले के टीवी को ऑन करने के लिए 20 to 30 सेकेंड लगता था, अभी इट स्टार्ट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, लेस देन अ सेकेंड। इसका मतलब ये ट्रांजिएंट जो बहुत ही कम लग रहा है। तो इसका केस में अगर पीआईडी कंट्रोल डिजाइन हम करेंगे तो वी हैव टू फोकस मोर ऑन डी पार्ट, डेरिवेटिव पार्ट, और ओवरऑल दोनों करना है, देन वी विल गो पीआईडी। इसमें तो अगर पी है तो हमारे पास जो ट्यूनिंग पैरामीटर है वो सिर्फ पी होगा। पीडी में ट्यूनिंग पैरामीटर केपी और केडी होगा। पीआईडी कंट्रोल में या पीआई कंट्रोल में केपी और केआई होगा। और पीआईडी कंट्रोलर की हम बात करें तो हमारे पास ट्यूनिंग पैरामीटर होगा केपी, केआई एंड केडी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 3 ट्यूनिंग पैरामीटर। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास 3 ट्यूनिंग पैरामीटर है देन टू अचीव अ ऑब्जेक्टिव विल बी मोर easier, but at the same time it will become more complex क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ों को ट्यून करना है, 3 वेरिएबल्स को पी आई एंड डी। बट in more than 95% of the cases PID control is preferred, and for that you have to select the right kind of tuning parameters KP, KI and KD। तो इसके right selection से PID controller हम डिजाइन कर सकते हैं। तो this was the idea of PID। Let's see if we can see through some examples। We will do it definitely, but that was the basic understanding or basic philosophy of controller। अभी हम इसको और भी डिटेल में देखेंगे जब we will try to design a control system for any real time system, and then it will become more interesting। but अभी मैंने ये बताया कि ये कैसे फंक्शन करता है, इसका रिक्वायरमेंट क्यों है, और how does it help, how does it changes to the dynamics of the system। okay, so in this class any question, any doubt? So I assume that there is no doubt in the class. So let's repeat a bit before I stop lectures. In today's lecture. So in today's lecture, we saw about the 3 different control configurations. They were proportional, derivative, or integral. And we also saw the combination of proportional controller with D controller, I controller, and combining all these 3 control structure, we saw proportional, integral, and derivative controller, PID controller. So in next class, we will move towards unit 4, where we'll start the stability part. Or when we understand the stability and system behavior, then we will solve any particular system, and we will try to design a controller for real-time system. So we'll come back to this concept once again. So for today, I'll end up here. So once again, if you have any doubt, you can write me email or you can call me. So thank you so much for today's class. So we'll meet on Monday or whenever there is the next class. Okay. Thank you.